Hello and welcome to the agenda. I am Ajay Kaul. In this program today we will be discussing about the situation in J&K after 1 year of abrogation of Article 370. It's 1 year since application of Article 370 in Jammu and Kashmir was scrapped, ending the special status which the erstwhile state enjoyed since 1947. Alongside, Jammu and Kashmir was also bifurcated into two union territories, Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh. The central government, while taking these landmark decisions, had said that these measures were aimed at ushering in development and peace in terrorism hit Jammu and Kashmir. So, what has changed in Kashmir in this 1 year? What has been achieved during this 1 year? We will discuss these questions in the agenda today. To give inputs from ground zero, we have with us two young voices of Kashmir who have been contributing to the national cause in their own way. Let us welcome Abid Salam, independent corporator, and Sajid Yusuf Shah, president of JK Youth Society. But before we start a conversation with them, let's have a look at this small report. On August 5 last year, the central government took a historic decision to abolish applicability of Article 370 in Jammu and Kashmir, thus ending its special status enjoyed over the past 7 decades. The state of Jammu and Kashmir was also bifurcated into two union territories, the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh. Abolition of the special status of Jammu and Kashmir was unexpected, even though it had been one of the main poll planks of BJP for over 3 decades. The decision was very bold considering the warnings of threats issued even by the mainstream political parties like National Conference and People's Democratic Party that there would be bloodshed if this provision was tampered with. In fact, these two regional parties had been demanding strengthening of Article 370, which had already been diluted over the decades. Article 370 gave several special rights and privileges to Jammu and Kashmir and prevented application of many national laws and rules in the erstwhile state. It prevented complete integration of Jammu and Kashmir with rest of the country. Over the decades, it was used as an emotional tool by political parties for their electoral gains, and this competition bred the feeling of separatism among a section of the populace. The Modi government, while ending the special status, asserted that it was essential to usher in peace and development. It insisted that Jammu and Kashmir had failed to witness development as per its potential because Article 370 tied the hands of the central government. There was a lot of hue and cry over the central government's decision, but the central government took a firm stand and refused to budge. It imposed strict restrictions in Jammu and Kashmir and placed many political leaders and others under detention, lest they should create mischief and disturb peace. Over the last 1 year, the central government has initiated and undertaken a host of development projects beside the measures to stamp out terrorism from Kashmir. Externally, Pakistan tried to rake up this issue at various international fora, but failed miserably, as almost all the countries, especially the powerful nations, stood by the decision of the government of India, which maintained that it was purely its internal matter. Bureau Report. So, let us welcome our special guests Abid Salam and Sajid Yusuf. Let me begin with Abid Salam. You are a corporator in Baramulla, Abid Saab. So, how do you see this situation 1 year from, after abolition of 370? So many things have been changed, so many promises has been, so many grievances are being redressed by the central government as well as by the administration of UT. Earlier, it was told by our these dynastic leaders, National Conference, PDP, Congress, and blah blah blah. They told that "Poon ki nadiya bahengi," this thing will happen, that thing will happen, bullets will run, grenades will be thrown.
to common people, zulm hoga, tashaddud hoga, everything. But now the scenario has completely changed. Once the article was abrogated, there were couple of promises on the floor of parliament that vikas hoga, development hogi, equality hogi, and I think the central government has started fulfilling the promises. And the as far as my things are concerned, this Article 370 and 35A, this was nothing just a political manifesto for some people, some leaders, like so-called leaders like Muftis and Abdullahs and Congress leaders also. They have used the sentiments of Kashmiri people. They have looted us. They have killed our sentimentists. They have killed our people. They have looted us on the name of 370 and 35A. Now we are seeing the real leadership. Like I am an independent corporator plus associated. We have recently formulated a party, Jammu Kashmir Workers Party. There was also a promise on the floor of parliament that new leadership ko mauka diya jayega. We are witnessing the new faces here in the Kashmir as well as in Baramulla. आज आपके सामने एक अदना सा छोटा सा रिपोर्टर जो हुआ करता था, वो एक कॉर्पोरेटर की हैसियत से नेशनल टेलीविजन पे बोल रहा है. ये एडवांटेज नहीं है एब्रिगेशन का, तो और क्या है. इससे पहले अगर हम इलेक्शन लड़ते थे नगर पालिका के, तो हमें पहले बड़े बड़े दिग्गजों को फेस करना पड़ता था. लेकिन शुक्र है अल्लाह का उसके बाद केंद्रीय सरकार का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम जैसे आम लोगों को भी उन्होंने अपने लोगों की खिदमत करने का मौका दिया. डेवलपमेंट हुई और वो लामिसाल प्रोजेक्ट जो है वो मोर्ज वजूद में आए, वो उनको बनाया गया जिनका हमने कभी तक सोचा भी नहीं था. So let me now turn to साजिद. साजिद, आप कैसे देखते हैं, एक साल हो गया आर्टिकल 370 खत्म हुए हुए. हाउ डू यू सी द सिचुएशन नाउ? जैसे कि अभी हमारे जो भाई अभी बात कर रहे थे, इनकी एक एक बात से मैं सहमत हूँ. और इन्होंने जो भी बताया, जो भी आपके सामने कुछ चीजें इन्होंने प्रस्तुत की, तो इनका अपना एक एक्सपीरियंस हो चुका है बिफोर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. अब मैं अपनी बात करूं, जैसे देखिए 370 जो था पहले बार, जैसे आबिद साहब ने खुद बताया कि इट वाज नथिंग, क्योंकि इनके जो एक डेफिनेशन, मैंने इसके लिए खुसूसी एक डेफिनेशन रखी हुई है आर्टिकल 370. मैं 370 उसकी पहले की बात कर रहा हूँ, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वाज जस्ट ए पॉलिटिकल टूल यूज्ड बाय द पॉलिटिशियंस फॉर देयर पॉलिटिकल बेनिफिट्स. इसका कोई आम लोगों का इसमें कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये ऑलरेडी खोखला हो चुका था. इसका सिर्फ एक नाम रहा था, जस्ट जो अपनी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे कश्मीर में है, जिन्होंने कश्मीर को मरवाया आजादी, सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी के बारे में. जब मैं बात करता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, इट इंक्लूड्स हुर्रियत, क्योंकि उनका भी एक बड़ा रोल रहा है कश्मीरी कौम को मरवाने के लिए. ठीक. एंड रही बात, देखिए 370 के बारे में बात करूँ, एक साल ऑलमोस्ट इज अबाउट टू कंप्लीट, एक साल कंप्लीट होने को आया हो. एंड अगर आपको याद होगा कि इसी एक साल के दौरान बहुत सारे जो लोग हैं वो क्वेश्चन करते हैं, गवर्नमेंट पे क्वेश्चन करते हैं कि आप मुझे बताइए कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ. देखिए जो मैस आज कश्मीर में है, ये आज की नहीं है. एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 है, वो हमें किसी और देश से नहीं मिला था, इसी देश से मिला था. और इसी देश में वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, इट वाज अ टेम्पररी प्रोविजन. तो आज गवर्नमेंट को जब लगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, उन्होंने हटा लिया. व्हाट्स द बिग डील. एंड सेकंड थिंग, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो 370 था, ये इसके हटने से बहुत सारी चीजें हमें सामने मिली. अगर आप देखते कि 370 के हटने के बाद आपको एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो रोड पे आया हड़ताल करने के लिए. रीजन उस चीज का ये था क्योंकि कश्मीरी कौम तब खुश हो गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, जब इन लोगों ने उन लोगों को जेल भर दिया जिन लोगों ने कश्मीरियों को आजादी, ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल के नाम से उनको मरवाया था. लोग उस चीज से खुश थे. रही एक साल की बात कह रहा हूँ कि एक साल का जो टेन्योर था, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, एक साल में मैं पूरा देख रहा था इन एंड आउट, हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, क्या हो रहा है एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हो रही है. देखिए कुछ ऐसे भी अनाथ शनाथ जो लोग हैं जिनका पॉलिटिकल पहले कैरियर खत्म हो चुका इस एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से, क्योंकि उनके पास अब लोगों के भेजने के लिए अब उनके पास कुछ है नहीं. वो सब पुरानी चीजें हैं, उनके पास कुछ है नहीं. अब वो तो आपको बता देंगे कि एक साल में कुछ नहीं हुआ. Okay, let me turn to Abid. Abid, this Article 370 has over the last 7 decades been used as an emotional tool, whether be it elections or maybe for attacking the central government or for various reasons. But what has Kashmir gained because of 370 and lost because of 370?
I believe Kashmir has gained a true grassroots democratic setup. I believe that Kashmir has gained a development. I believe Kashmir has, तो कश्मीर ने गेन किया है केंद्र सरकार का भरोसा. कश्मीर ने ग्रास रूट डेमोक्रेसी को गेन किया है. जैसा कि अभी साजिद साहब ने कहा कि आर्टिकल 370 जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये देन थी, एक टेम्परेरी देन थी. और जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि यहाँ की डायनास्टिक लीडरशिप जो है उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है, उन्होंने कभी पोटा, कभी काटा, कभी इनोसेंट लोगों को जेलों में भरवाया, कभी यहाँ पर अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए आम जनता को भटकाया, या यहाँ की हुर्रियत लीडरशिप ने आम जनता को भटकाया. तो कश्मीर की जो अवाम है, जो पीस लविंग अवाम है, अमन पसंद अवाम है, उन्होंने अमन को गेन किया है. उन्होंने जब केंद्रीय सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम आर्टिकल को एब्रोगेट करेंगे और यहाँ के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स को, मुफ्तीज और अब्दुल्ला को उन्होंने जेलों में बंद किया, तो तब जाके हम और छोटे नए चेहरों को मौका दिया, तो तब हमें लगा कि शायद नहीं, कहीं ना कहीं पे जो है हमारी बात भी अब सुनी जाएगी, कहीं ना कहीं पे जो है हमें भी मौका मिलेगा. तो साजिद, अगर आपकी तरफ मैं आ जाऊं कि ये जो एक कश्मीर में जो नारा होता है आज़ादी चाहिए, हमको आज़ादी चाहिए, बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे वॉइसेस अब मैं सुन रहा हूं कि हमको आज़ादी चाहिए गन से, टेररिज्म से. और क्या ये टेररिज्म से आज़ादी मिलेगी 370 ख़त्म होने की वजह से? और जैसे आबिद साहब ने भी कहा, जैसे डायनास्टिक रूल था उसको ख़त्म करने में ये एक स्टेप है क्या? देखिए, सबसे पहले हमें इस चीज को समझने की जरूरत है. जो ये 370 था, इसको 70 साल हुए थे और इसको हटाने में ऑलमोस्ट 70 साल लगे इस चीज को समझने के लिए कि कैसे इस चीज को हटाया जाए, उससे नुकसानात क्या है. इस चीज को 70 साल लगे. रही जो कश्मीर मैस के बारे में, जैसे आपने कन्फ्लिक्ट के बारे में बात की, चाहे टेररिज्म हो, बाकी चीज हो, इसको ऑलमोस्ट 30 साल हो गए. अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैंने आपको कहा, हर किसी चीज इंसान का अपना इंटरेस्ट होता है. जैसे मैंने कुछ परिवारवादों के बारे में बात की थी, उनका अपना इंटरेस्ट था. एंड अगर वो ये सोचते हैं जो मैस उनके बाप दादा ने जो मैस उनकी क्रिएशन है, उनकी देन जो है, उनकी फैमिलीज की देन है, उनकी जो विरासत से हमें मिला है 30 साल से या 70 साल से, चाहे कांग्रेस के बारे में बात करें, PDP MC का तो रोल है इस चीज में, अगर उनके बारे में बात करूं, ये तो 30 साल से या 70 साल से ये सब चीजें चल रही है. एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि ऑल ऑफ सडन यहाँ पे चीजें चेंज हो. जिस पुल को बनाने के लिए उनको 10-10 साल 20-20 साल तक अभी मुकम्मल नहीं हुआ, एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि रातों रात पुल बननी चाहिए. एंड मैं आपको ये चीज बता दूं कि हमारा जो एक फ्लाईओवर, श्रीनगर की बात करूं, एक फ्लाईओवर पिछले लगभग 7-8 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था. एंड मुझे लगता है कोविड में भी उसका एक डिस्पाइट हैविंग कोविड, फिर भी गवर्नमेंट ने ऐसा उसका कर लिया तो पूरा काम हो गया. एंड इट्स फाइन वर्किंग नाउ, इट्स फंक्शनल नाउ. एंड द थिंग रही इसकी बात, टेररिज्म के बारे में बात करूं आपको, यहाँ पे लोग बहुत सारी ये सब चीजें कहते हैं कि देखिए 370 हटने के बाद यहाँ पे बोला गया कि टेररिज्म खत्म होगा. देखिए, जैसे अगर आप आंकड़े देख ले आप इस चीज का, 250 प्लस टेररिस्ट हैज बीन किल्ड दिस ईयर. अब देखिए 370, मैंने आपको कहा जिसका बिजनेस इस पे चल रहा था, उनका तो बिजनेस बंद हो गया था. इट्स ऑल देयर फ्रस्ट्रेशन जो आजकल लोगों को प्रवोक कर रहे हैं कि हमारा तो सब कुछ छीन गया, क्या हो गया. ये मुझे बताइए, कॉमन कश्मीरी लाइक मी एंड मेरे जैसे जो लोग हैं, उनका क्या कम हुआ? ना तो मेरा कुछ ज्यादा हो गया, ना तो कम हो गया. बट इतना कह सकता हूँ कि हम जैसे जो मतलब कॉमन कश्मीरी है, उनको अपनी बात रखने का मौका मिला. एंड द थिंग्स, अगर ये बात हम 370 से पहले कर ले, मुझे लगता है टेररिस्ट से ज्यादा खतरा हमें इन पॉलिटिकल पार्टी से था, जो हमें अपनी बात रखने से हमें गन की नोक पे हमें वो साइलेंस करते थे. एंड दिस इज रियलिटी एंड इट विल टेक टाइम, नो डाउट. इट्स नॉट, ये जो मैंने आपको कहा, ये मैस एक दिन का क्रिएशन नहीं है, ये एक साल का नहीं, इट्स ऑल 30 years. एंड इट विल टेक टाइम, विद इन नो टाइम it will take time, and will less, I hope within less period of time things will change. एंड अभी टाइम लग जाएगा, जैसे कोविड का सिलसिला चल रहा है. कोविड, आई होप कोविड के बाद बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली. इवन अगर आप एक साल का इसका गवर्नमेंट का आप देख लिया, उनका फंक्शन, उन्होंने कैसे काम किया, दे हैव डन अ ट्रेमेंडस वर्क डिस्पाइट हैविंग कोविड. पूरी दुनिया में मारामारी है. यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं एक साल में किया नहीं. अरे भाई साहब, 3-4 महीने से हम कोविड से जी रहे हैं. पूरी दुनिया इकोनॉमिक डाउन हो रही है, और वो लोग उसको कह रहे हैं कि कश्मीर की इकोनॉमिक 370 से डाउन हुई.
وہ تو جب آپ مجھے یہ بتائیے ان لوگوں کی زبان تب کہاں تھی جب حریت والے یہاں پہ ہڑتال دے دے کے کشمیر کی اکنامی کو کھوکھلا کیا ہوا تھا، تب ان کو یہ سب چیزیں یاد نہیں آ رہی تھی. بٹ دا تھنگ از ان کو اپنا ایجنڈا چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی بات چاہیے، اسی لیے وہ یہ فضول باتیں اس ٹائم کر رہے ہیں. Okay, Abid, I will ask you the same question. Yes. It was said that abolition of 370 will bring azadi from terrorism. Do you believe in this? To some extent, I can tell you. See, for me, terrorism. I can define terrorism here in the valley in two ways. First, जो बंदा घर से निकलता है और हथियार उठाता है, वो भी टेररिस्ट है, और आम लोगों को मारता है या कोई भी ऐसी एंटी स्टेट या एंटी नेशनल एक्टिविटी करता है, वो टेररिस्ट है. प्लस जो लोग यहाँ पर सियासत के नाम पे आम लोगों को भटकाते हैं, तो वो भी टेररिस्ट है. मेरी नजर में सबसे बड़े टेररिस्ट ये लोग थे, मुफ्ती अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी. वो तो ऑलरेडी वो तो पर्दे के बाहर वाले टेररिस्ट थे, लेकिन ये वो टेररिस्ट थे जो पर्दे के अंदर हम कश्मीरियों का हमें कुरेदते थे. तो जहां तक अब पहले वाले टेररिज्म की बात है, तो मेरे ख्याल से कुछ कहीं ना कहीं पे धारा 370 जो है उसके हटने के बाद कहीं ना कहीं पे इन सब चीजों पे रोक लगा दी गई है. क्योंकि अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता था और या किसी एंटी नेशनल या एंटी स्टेट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता था, वहां से वो स्टेट के एमएलए का भांजा होता था, बच्चा होता था, या उसके वर्कर का बेटा होता था. तो विदिन हाफ एन आवर जो है वो निकल जाता था, मतलब पुलिस की हिरासत से या सिक्योरिटी फोर्सेस की हिरासत से वो निकल जाते थे. लेकिन एब्रोगेशन के बाद ये जो सियासी चीजें हैं, ये जो सियासी टेररिज्म है यहाँ का, वो बिल्कुल खत्म हो गया है. और जिसने यहाँ पे जो है एक्चुअल टेररिज्म को खत्म करने में भी कई हद तक जो है साथ दिया है. मैं आपको बताऊं, मतलब मैं और साजिद को वी कंटिन्यूअसली लिव इन अ कांस्टेंट थ्रेट. हमें पता नहीं होता है कि हमारी जान कब चली जाएगी या हम पे कब अटैक होगा, लेकिन फिर भी एक भरोसा है केंद्रीय सरकार पे, फिर भी एक भरोसा है हमें अपनी यूटी की सरकार पे, अपनी भारतीय सेना पर, कि किस तरह से जो है हम अपने आप को बचाएंगे. और किस तरह से भरोसा बिल्ड हो गया है कि भारतीय सेना या यहाँ की लोकल पुलिस जो है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमें सपोर्ट करेगी बिना किसी पॉलिटिकल दबाव पे. तो आपके सवाल का जहां तक ताल्लुक है, हाँ मैं ये मानता हूँ कि टेररिज्म को, पॉलिटिकल टेररिज्म जो डायनास्टिक टेररिज्म था यहाँ पर, it has helped to eradicate this thing from our Kashmiri people, and it has also helped us to to cope up from these dynastic leadership. वहां से वापस कैसे हम आए, ये हमारा अल्लाह ही जानता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की कोशिशों का नतीजा है. Okay, Abid Sahab, continuing with this, Pakistan is now planning some big programs on this 5th, and they are, I think, provoking people in Kashmir also to do something on 5th. How do you see, what will be your message to Pakistan for this? My message will be not only for Pakistan, my message will be for all these elements who try to break our harmony, who try to break our peace, اور ہمیں یہ دھمکی دیتے ہیں کہ 5 اگست کے دن ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے. ارے بھائی میرے، خود کی تو سوئی بھی نہیں بنا لیتے ہو اور چلے ہو ہمارے کشمیر کو لوٹتے. اگر آپ کو کشمیریوں سے محبت ہوتی، اگر آپ لوگوں کو کشمیریوں کے جذبات کی محبت ہوتی، اگر آپ لوگوں کو کشمیریوں کے احساسات کی محبت ہوتی، تو آپ یہاں پہ گن کبھی نہ بیچتے. میں ایز اے کامن کشمیری میں آپ کو بتاؤں، میں نے ملیٹنسی کو بہت کلینلی وٹنس کیا ہے. میں ایز اے ووٹر آف دا کشمیر یا ایک عام ناگرک کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ میں نے ملیٹنسی کو بھی موقع دیا. ہم کشمیریوں نے، یہ بڑی امپورٹنٹ میسج ہے سب لوگوں کے لیے جو ہماری ایک نیشن کو، ون نیشن نعرے کو توڑنا چاہتے ہیں، اور آپ کے مادھیم سے میں سب تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ وہ چیز ہے کہ ہم نے یہاں پہ گن کو بھی موقع دیا، اس کے بعد ہم نے یہاں پہ حریت کلچر کو بھی موقع دیا، اس کے بعد ہم نے یہاں پہ نیشنل کانفرنس پہ بھی بھروسہ کیا، اس کے بعد کشمیری نے پی ڈی پی پہ بھی بھروسہ کیا، اس کے بعد کانگریس پہ بھی، بہت ساری سیاسی بی جے پی بھی، سب سیاسی جماعتوں پہ ہم نے بھروسہ کیا. لیکن کسی نے کشمیری کے جذبات کو
जो है रास नहीं लाया। और मेरी ये मैसेज कंट्रीज के लिए, हमने आपको भी मौका दिया भाईजान, लेकिन आप भी हमारे भरोसे पे खड़े नहीं उतर पाए। अब अगर कश्मीरी एक पीसफुल डेमोक्रेटिक सेटअप जीना चाहता है, एक कंट्री के एक वन नेशन वन फ्लैग के साये के नीचे रहना चाहता है, अमन से रहना चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, मेरा कश्मीरी आज कोई ये नहीं चाहता कि मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूं। अरे यार, हम खाली पीस चाहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इतना देखा है, इतनी सारी सफरिंग्स देखी है कि हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं। मगर एक चीज, हम अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। हम यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से या किसी और नेशन से कोई दावा नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि हमें अमन से रहने दो। हम अमन पसंद लोग हैं। पाकिस्तान को भी मैं कहता हूँ कि हम अमन पसंद लोग हैं, अमन से रहने वाले लोग हैं। पहले आप अपनी कंट्री के अंदरूनी मसाइलों को हल करें, फिर आप देखते हैं कि आप हमारे मसाइलों को कहाँ पे हल करते हैं। लेकिन पहले आप अपने ही गिरेबान में झांक के दीजिए कि आपके गिरेबान में कितनी बदबू है, फिर जाके आप भारत की तरफ आंख उठाना, फिर जाके आप कश्मीर की तरफ आंख उठाना और कश्मीरी की तरफ आंख उठाना। साजिद साहब, मैं यही सवाल आपसे भी पूछूंगा। पाकिस्तान प्रोवोकेशन पे लगा हुआ है, 5 अगस्त को कुछ ना कुछ करो। जैसे आबिद भाई ने अभी बोला कि हम अमन पसंद लोग हैं, हमको अमन से जीने दो, हम गन का ये कल्चर खत्म करो। आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान को कह रहे हैं। देखिए, मुझे पहले इन लोगों पे हंसी आ रही है, जो लोग आरटी बांग्लादेश जिनके हाथ से गया हुआ है, जिन लोगों के हाथ से जो बांग्लादेश नहीं संभाल पाए, और वो लोग कश्मीर के बारे में बात करते हैं। रही जो आप बात कर रहे थे कि उनका जो कुछ प्लान्स है 5 अगस्त को लेके, देखिए ये जो इनके जो बचकानी जो हरकतें हैं, वीडियोस ये रिलीज करना, जैसे कल ISPR प्लस रेडियो पाकिस्तान ने 2 वीडियोस जारी किए हुए हैं। गाना चलाया था जी, वो गाना कुछ बनाया है कश्मीर के ऊपर। जी 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 जी, मैं ये उसी पे बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उनने वो 2 वीडियोस रिलीज किए हैं, कश्मीर पे किए हुए हैं। एंड द थिंग इज, उनको लगता है कि इनके बचपने इन हरकत से ये कश्मीर को आजाद करेंगे। लेकिन मैं ये चीज कहता हूँ कि इन लोगों पे अगर आप देख लें कि इनके अपने लोग इनको कोसते रहते हैं कि ये देखिए कि इनको लगता है हम वीडियो बनाने से कश्मीर आजाद करेंगे, ये देखिए इनको लगता है सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करने से कश्मीर आजाद करेंगे। रही जैसे अभी आबिद भाई ने खुद बात की कि बहुत सारी चीजों पे विषय पे उन्होंने चर्चा किया, मैं भी उस चीज को कुछ बोलना चाहता हूँ कि देखिए, अगर ये लोग दावा करते हैं, शहरत के बारे में दावा करते हैं, अगर ये लोग हमारे अच्छी भलाई के लिए सोचते होंगे, तो ये इंस्टीड ऑफ गन या हमारे यहाँ बुक्स बेचते हैं या एजुकेशन सिस्टम के लिए या कुछ ऐसा कुछ यहाँ पे मटेरियल बेच देते। देखिए इनकी क्या दिक्कत है, ये यहाँ अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं और हमारे जितने भी यहाँ के बच्चे हैं जिनके हाथ में पेन ये देखते हैं, उनको ये बंदूक थमा देते हैं ताकि कश्मीरी जो अवाम है वो यहाँ पे इलिटरेट रहे और ये लोग कश्मीरियों पे राज करें। और पिछले 30 साल से ये लोग यही करते आ रहे हैं। और मैं इनको ये मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ कि अगर इनको लगता है कि कश्मीरी कौम बेवकूफ है जो ये 30 साल से इनको बना रहे हैं, ऐसा हरगिज हो नहीं सकता। आज का जो कश्मीरी है वो एक क्लेवर है एंड ही नो वेरी वेल कि इनकी जो चाल है, इनकी साजिश है और इनके जाके में वो फंसने वाला नहीं है। आइंदा अगर इन लोगों ने गलती से भी और ऐसी चीजें प्रोवोक की, आने वाला वक्त ऐसे होगा जब इनके हाथ से POK भी छीन जाएगा और बलूचिस्तान भी छीन जाएगा। अच्छा साजिद भाई, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो लास्ट ब्रीफ कमेंट्स लेंगे आपसे। ये जो पॉलिटिकल डिटेंशंस रहे हैं इतनी देर तक, इतने महीनों तक पॉलिटिकल लीडर्स जो थे उनको डिटेंशन में रखा गया, आप इसको कैसे देखते हैं? बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ इस पे। देखिए जैसे आपने बात की कि पॉलिटिकल जो यहाँ पे डिटेंस हुए थे, उसका मैंने आपको खुद कहा कि बहुत सारे जो यहाँ पे लोग थे पॉलिटिकल, जिनका यहाँ पे पैकेज था पास में, उनका इसी चीज पे चल रहा था। उनका सियासत जो चल रही थी 370 को लेकर चल रही थी। कुछ तो अगर आपको याद होगा कि जब PDP ने यहाँ सरकार बनाई तब ये कहा था कि हम लोग यहाँ पे BJP को घुसने नहीं देंगे, आप हमें वोट डालिए। और उसी उन लोगों को बेवकूफ बना के उन लोगों ने सरकार BJP के साथ बनाई। ये लोग वही लोग हैं जिन लोगों ने अपने लोगों के साथ धोखा किया, ये दूसरों के साथ क्या कर सकते हैं। रही दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, ये दिल्ली में भारत माता की जय और कश्मीर में ये आजादी और इसके बारे में बात करे तो, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग बाहर घूमें। अगर ये लोग सड़कों पे, अगर ये लोग खुले होते, मुझे लगता है आज कश्मीर जल रहा होता है।
اینڈ ہمیں لگتا ہے جو یہاں کیا جو نوجوان ہو جو کشمیری قوم آپ کو ایک ایسا بندہ نہیں ملے گا کشمیر میں جو آپ کو یہ کہے گا کہ ان لوگوں کو ڈیٹین کیوں کیا گیا. ایسا ہر کوئی کشمیری آپ کو یہ کہے گا کہ میں اس چیز سے خوش ہوں. یہ بھی اگر آپ کل کی بات کشمیری لوگ خوش ہیں. ہم ساجد بھائی عابد بھائی سے بھی یہی پوچھیں گے, ایک لاسٹ کمنٹ بتائیے اسی بارے میں, ڈیٹینشن, پولیٹیکل ڈیٹینشن. جی بتائیے سر. جی پولیٹیکل ڈیٹینشن پہ جو بڑا کرٹیسزم ہوا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز کو ڈیٹینشن میں رکھا, بس 1 منٹ میں ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. دیکھیے سر, بہت ہی بڑھیا سوال ہوا. میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سوال جو ہے مجھ سے پوچھیں. ساجد بھائی نے بھی اس کا بڑا اچھا جواب دیا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ کرٹیسزم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ پولیٹیکل ویکیوم کیا. ارے بھائی میرے, اس ٹائم پہ پولیٹیکل ویکیوم نہیں تھا جب یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہے نگر پالکا اور پنچایت الیکشن کے لیے بائیکاٹ کیا. کیا اس ٹائم پہ پولیٹیکل ویکیوم نہیں تھا؟ کیا اس ٹائم پہ ان کی سرکار نہیں تھی؟ تو یہ ابھی کرٹیسزم کر رہے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اب مینڈیٹ ملے, ہم پھر سے لوگوں کے پاس آئے اور 370 کو کس طرح سے واپس لانے میں یہ لوگوں کا ووٹ لیتے ہیں, کس طرح سے سینٹیمنٹس کو کھیلنے کے لیے واپس آ جائے. تو یہ وہی کرٹیسزم ہے بیسیکلی کہ پھر ایک بار جو ہے ہم لوگوں کو موقع دیا جائے. یہ دیکھیں, ایک پولیٹیشین کو جو ہے ڈیٹینشن یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اگر ان کو کشمیری کی درد ہوتی, کشمیر کے ساتھ پیار ہوگا تو یہ بھی گراس روٹ لیول کے الیکشن کو بائیکاٹ نہیں کرتے. اور یہ کبھی بھی ان سب چیزوں کے لیے اپنے ہمارے سینٹیمنٹ کے ساتھ. تو یہ ڈیٹینشن جو ہے یہ اب ان کا ایک ایجنڈا بن گیا ہے. یہ دے آر وکٹمائزنگ دیئر سیلفز کہ ہم جی اب وکٹم بن گئے, ہمیں بھی سینٹرل گورنمنٹ ہے, یو ٹی کی گورنمنٹ. چلو وی ہوپ ناؤ دس ایجنڈا ان کا ختم ہو جائے گا. وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو پیس اینڈ ڈیولپمنٹ ان کشمیر, اینڈ یو آر دا ریئل وائسز آف کشمیر. آئی ہوپ پاکستان listens to you and takes back whatever machinations they are planning for Kashmir. Thank you so much for participating in this debate. This is all in the agenda today. Thanks for watching. I will be back with another important topic tomorrow. Till then, goodbye.